تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ کسی کے لیے ہر وقت حاضر رہو گے تو لوگ اچھا نہیں فالتو سمجھ لیتے ہیں۔ اچھے وقت کی ایک خامی یہ ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ مشکل وقت کو بھلایا جا سکتا ہے، مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ کر جانے والے کبھی نہیں بھلائے جا سکتے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں لگ رہے ہوں وہی حق ہے۔ پرفیوم لگانے سے پہلے یہ بھی سوچا کریں کہ ہمارا اخلاق اور کردار بدبودار تو نہیں ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں طعنے مارنا، مذاق اڑانا یا خامی نکالنا۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہوں، یاد رکھیں بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈنک مارنا ہوتا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ اختلاف ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ ہم لوگ صرف نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ زندگی کتنی ہی تنگ، راستے کتنے ہی تاریک اور وسائل کتنے ہی محدود کیوں نہ ہو جائیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، وہی مسبب الاسباب ہے۔ اگر اللہ انتظار کروا رہا ہے تو تیار رہو، اس سے بڑھ کر تمہیں دے گا جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ اللہ کی محبت کا انداز بھی نرالا ہے، سب دے کر بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ قرآن پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا اور سکھانا، اس پر عمل کرنا صرف مولوی پر نہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نسلیں سنور جاتی ہیں جب کوئی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اے انسان تو کتنا خوش قسمت ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک تم سے بات کرتا ہے۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ محبت اللہ پاک سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہر بلندی کی سیڑھی ہے۔ بس تم اپنے رب پر یقین رکھو، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یقین رکھیں، صبر رکھیں، وقت بھی بدلے گا، خوشیاں بھی، نصیب بھی۔ اور اللہ واقف ہے میری نیت سے، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ پھر میں نے سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا، پھر وہی ہوا جو میرے حق میں بہتر تھا۔ انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا جب وہ یہ سمجھ لیں کہ ہر چیز اللہ پاک کی مرضی سے ہوتی ہے۔
مجھے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کہتی ہے، میری نیتوں سے واقف ہے میرا خدا۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ کون اچھا ہے کون برا ہے، اس کے لیے اللہ نے آپ سے رائے نہیں مانگی۔ صبر کرنا اگر اتنا آسان ہوتا تو اللہ پاک نے صبر پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ کبھی کبھی صرف ہم اور ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ وہ تو بن مانگے اتنا دیتا ہے، اور تم مانگ کر نا امید کیسے ہو؟ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ مسکراتے رہا کریں، کیونکہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نہ تھا کوئی ہمارا، نہ ہم کسی کے ہیں، بس ایک اللہ ہے اور ہم اسی کے ہیں۔ جب آپ کو کوئی ادھورا چھوڑ جائے تو خدا مکمل کرنے والا پہلے سے بہتر بھیج دیتا ہے۔ اللہ تمہاری جھولی کو تب خالی کرتا ہے جب اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بہتر ہو۔ محبت تو نام ہی انتظار کا ہے، چاہے پھر اللہ کے کن کا ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن پاک گواہ ہے معجزوں کا، تم کیوں اللہ پاک سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو؟ جو بھی پڑھتا ہے ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا، جانے کیا بات ہے قرآن پاک تیرے پاروں میں۔ گوگل سے دنیا کا ہر راستہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جنت کا راستہ صرف قرآن پاک دکھاتا ہے۔ قرآن دل کا سکون ہے اور نماز چہرے کا نور ہے۔ خدا تم پر رحم تو کرتا ہے ہر اس شخص کی اصلیت دکھا کر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم خود پر خود ہی رحم نہیں کرتے ہو۔ وہ کن فرمائے گا اور تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے۔ بے شک میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ پتہ ہے سکون کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اپنے رب سے گفتگو کرنا۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہیں، ہاتھ بنانے والے پہ یقین رکھو۔ یہ لوگوں کو ہنسانے والے جب اللہ پاک سے باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ شاید دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے۔ وہ رب جب صبر دیتا ہے نا تو جان سے پیارا شخص بھی سامنے کھڑا نظر نہیں آتا۔ اور تم خود کو اکیلا محسوس کیوں کرتے ہو؟ وہ رب تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم کیوں گھبراتے ہو؟ مقدر کے فیصلوں پر کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب غفور رحیم ہے؟ کون اچھا ہے کون برا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے آپ سے رائے نہیں مانگی۔ صبر کرنا اگر اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ کبھی کبھی صرف ہم اور ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ وہ تو بن مانگے اتنا دیتا ہے، اور تم مانگ کرنا امید کیسے ہو؟ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں کیا آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ مسکراتے رہا کریں، کیونکہ یہ ہمارے نبی پاک کی سنت ہے۔ نہ تھا کوئی ہمارا، نہ ہم کسی کے ہیں، بس ایک اللہ ہے اور ہم اسی کے ہیں۔ ہاتھ کی لکیروں پر نہیں، ہاتھ بنانے والے پر یقین رکھو۔ محبت تو نہ بھی انتظار کا ہے، چاہے پھر اللہ کے کون کا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کون فرمائے گا اور تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے۔ بے شک میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ قرآن گواہ ہے معجزوں کا،
तुम क्यों अल्लाह से मायूस हुए बैठे हो? जो भी पढ़ता है हो जाता है दीवाना, तेरा जाने क्या बात है कुरान तेरे पारों में। कुरान दिल का सुकून है और नमाज चेहरे का नूर है। फिर वो तुम्हारी मनपसंद चीज तुम तक लाएगा मुकर्रर वक्त पर और तुम हैरान रह जाओगे। ये लोगों को हंसाने वाले जब अल्लाह से बातें करते हैं तो रो पड़ते हैं। अल्लाह तुम्हारी झोली को तब खाली करता है जब उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ बेहतरीन हो। शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने आप को खुश रखना है। गूगल से दुनिया का हर रिश्ता देखा जा सकता है, लेकिन जन्नत का रास्ता सिर्फ कुरान दिखाता है। वो रब जब सब्र देता है तो जान से प्यारा शख्स भी सामने खड़ा नजर नहीं आता। और तुम खुद को अकेला क्यों महसूस करते हो? वो रब तो हमेशा तुम्हारे साथ है। अल्लाह जानता है हर शुक्र के पीछे का सब्र, वो जानता है हर तड़प, उसे हर दुख की है खबर। किसी की आंख तुम्हारी वजह से कभी नम ना हो, क्योंकि तुम्हें उसके हर आंसू का कर्ज चुकाना होगा। दिल की तसल्ली के लिए सिर्फ इतना काफी है कि अल्लाह ने कुछ और बेहतर सोचा होगा। वो रब तो तुम्हें देने का बहाना ढूंढता है, तो फिर तुम मांगते हुए क्यों थक जाते हो? वो थाम लेता है गुनहगारों को भी, वो जमाने की तरह रुस्वा नहीं करता। झुक जाना ही मोहब्बत है, इसका सबसे बड़ा सबूत सजदा है। अल्लाह से मांगकर नहीं रोते, अल्लाह से रोकर मांगते हैं। और पता है सुकून क्या है? अकेले बैठकर रब से गुफ्तगू करना। जिन्हें यकीन हो मुकद्दर लिखने वाले पर, वो अंजाम से घबराया नहीं करते। और जब अल्लाह किसी को माफ करता है तो उसे नमाज की तौफीक भी देता है। हो सकता है तुम दुनिया की मोहब्बत मांग रहे हो और उसने तुम्हें अपने लिए चुन रखा हो। दिल अगर दिल बनाने वाले से लगाओगे तो तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटेगा। और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का समान है। सब्र रखो और अल्लाह के फैसलों पर खुश रहो, तुम्हें बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। कभी किसी का दिल नहीं दुखाव हो सकता है, वो आपसे ज्यादा अल्लाह का अजीज हो। लोगों की असलियत सामने आ जाना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ज्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता है, बस दुआ करो और अल्लाह ताला पर छोड़ दो। सुकून पता है क्या है? अकेले बैठकर रब से बातें करना। जो दुआ से भी नहीं मिल रहा तो समझ जाओ अल्लाह ने उससे बेहतर आपको अता करना है। वो फरमाता है ये सख्ती कुछ वक्त की बात है, सब्र कर लो, मैं सब्र करने वालों को पसंद करता हूँ। मुकद्दर भी बदलता है और हालात भी, वो रब गम का मौसम हमेशा नहीं रहने देता। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, मुझे माफ फरमा, आमीन। और हमने इंसान को बहुत ही खूबसूरत पैदा किया है। खुदा तुम पर रहम तो करता है हर उस शख्स की असलियत दिखाकर, मगर मसला ये है कि तुम खुद पर खुद ही रहम नहीं करते हो। कुछ तो अल्लाह की भी रजा होगी, वरना दुआएं बेवजह तो दिल का हिस्सा नहीं बनती। जमीन के जिस टुकड़े पर तुम नमाज पढ़ते हो वो हिस्सा तुम्हारा गवाह बन जाएगा। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी है, जो ठोकर अल्लाह तक ले जाए वो सजा नहीं होती। पता नहीं हम रब से जुड़ने के लिए अपने टूटने का इंतजार क्यों करते हैं। हर किसी का अल्लाह से अपना ताल्लुक होता है, आप अपने फतवे अपने पास ही रखा करें। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, मेरी नियतों से वाकिफ मेरा खुदा है। खुदा ही रह गया पास तुम्हारे, बताओ वो जान से प्यारे किधर गए। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है, अगर से हद साथ छोड़ जाए हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है।
जिंदगी की हकीकत इतनी है, जब इंसान संभलने लगता है तब जिंदगी लड़खड़ाने लगती है। कुछ लोगों की फितरत परिंदों की तरह होती है, जहाँ दाना वही ठिकाना। कोशिश करे रिश्तों में मुखलिस रहे। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाने बंद कर दे तो समझ लेना उसकी इज्जत नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। मैं हर शख्स की हकीकत से वाकिफ हूँ। मैंने खास मकाम देकर आजमाया है लोगों को। ये तल्ख हकीकत है कि आपकी बात को तवज्जे आपकी हैसियत देखकर मिलती है। पता है तकलीफ कब होती है? जब आपसे कोई अपना बहुत खास शख्स झूठ बोल रहा हो और आप सच जानते हो। कभी कभार हमें लोगों की असलियत का पता होने के बावजूद भी खामोश रहकर सिर्फ ये देखते हैं कि उनकी आखिरी हद क्या हो सकती है। कुछ लोग जिधर की हवा देखते हैं चल पड़ते हैं, हालांकि ये काम इंसानों का नहीं, गली में पड़े शापरों का होता है। किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना मायने नहीं रखता, वफादार होना अहमियत रखता है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज्यादा वो उन चीजों से बीमार होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करे। लोग तो अमरूद को भी मीठा होने की शर्त पर खरीदते हैं और बाद में नमक लगा लगा कर खाते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करें। इंसान भी अजीब मिजाज का है। जो उसकी तबीयत को समझे वो उसको अच्छा लगता है, और जो उसकी नीयत को समझे वो उसे बुरा लगता है। जिंदगी की जंग अपने बलबूते पर लड़नी पड़ती है। लोग सिर्फ मशवरे देते हैं, साथ नहीं। हमेशा जिंदगी इस तरह बसर करें कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। एक दूसरे की रिज्क पर नजर मत रखो, क्योंकि अल्लाह पाक से बेहतर कोई तकसीम नहीं कर सकता। जिंदा शख्स की कदर करें। जिंदा शख्स के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाना उसकी कब्र पर फूल रखने से बेहतर है। लफ्जों के भी जायके होते हैं, बोलने से पहले चख लिया करें। लोग जब तक भीग ना जाए बरसात को नहीं मानते, और जब तक खुद पर न बीते जज्बात को नहीं मानते। जो लोग जानते हो बिछड़ जाने का दुख, वो साथ बैठे परिंदों को भी उड़ाया नहीं करते। रिश्तों में इतना भी कंप्रोमाइज ना करें कि अपने ये भी भूल जाए कि आप भी इंसान हैं। बात करने का मजा उन लोगों के साथ आता है जिनके सामने बोलने से पहले सोचना ना पड़े। अपने सब राज उस खुदा को बताया करो। यकीन मानो उससे बढ़कर कोई पर्दा रखने वाला नहीं। मेरा रब कहता है ना उम्मीद ना होना, मौजे हमेशा मुश्किलों में ही होते हैं। अल्लाह ने 7 समंदर पैदा किए हैं, लेकिन वह मोहब्बत एक आंसू से करता है। चलो रब के दरवाजे पर चलते हैं, वहां एक आंसू के बदले खुद खुदा मिलता है। नसीब का लिखा मिलकर रहता है, तब कहां कैसे यह सब मेरा रब जानता है। जमाना मुश्किल में डाल देता है, अल्लाह रास्ते 1000 खोल देता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से वन नास तक तुझको रहमत के सिवा कुछ ना पाया। कुछ लोगों की हकीकत इस कलम के जैसी होती है, आप दिल के करीब जगह दो फिर भी दाग दार कर जाएंगे। आजकल जरूरतें तय करती हैं लहजा कितनी देर मीठा रखना है। दुनिया में सबसे ज्यादा वजन इंसान की अपनी सोच का होता है। सिर्फ मरे हुए लोग ही नहीं, कभी कभी जिंदा लोग भी लौट कर नहीं आते। डिग्रियां तो तालीम के अखराजात की रसीद है, इल्म वही है जो किरदार से झलकता है। अल्लाह इंसान को उतना ही गम देता है जितना वह सह सकता है। उम्मीद जब अल्लाह से जुड़ी हो तो टूटने का इम्कान नहीं होता। एक सा वक्त कभी भी नहीं रह सकता। दिन बिगड़ते हैं, संवरते हैं, गुजरते हैं।
जिनको मंजिलों की फिक्र होती है वह लज्जतें देखकर रुकते नहीं है, अपना सफर जारी रखते हैं। खामोशियों को समझना सीखो, क्योंकि उसमें सच होता है, झूठ नहीं। रुजू और उरूज में चारों हाथ एक जैसे हैं, बस तुम अपने रब की तरफ रुजू करो, वो तुम्हें उरूज देगा। अल्लाह माजी देखकर नहीं तरफ देखकर अता करता है। फूल अपने साथ वाले फूल का मुकाबला करने के बारे में नहीं सोचते, वह सिर्फ खिलते हैं। जो इंसान अपनी किस्मत पर खुश है, दर हकीकत वही खुशकिस्मत है। एक गलत इंतखाब आपके चेहरे की रौनक छीन लेता है। सब्र की एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब आ जाता है तो किसी की तलब नहीं रहती। रंगीन ख्वाब ऊंचे शौक आगे, जिंदगी पीछे मौत। क्यों लोगों को मरना आसान लगता है? क्या कब्र, हश्र, हिसाब किताब सब मजाक लगता है? कोशिश करें कि बिना मतलब अच्छे बने, मतलब के लिए तो सभी अच्छे बनते हैं। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है, जो ठोकर अल्लाह तक ले जाए वह सजा नहीं होती। जो अल्फाज में बयां नहीं हो पाती, रब वह दुआएं भी सुन लेता है। वो थाम लेता है, गुनहगारों को भी वह जमाने की तरह रुस्वा नहीं करता। जिंदगी एक आईना है, आप उसे बेजार होकर देखोगे तो बेजार हो जाओगे, और मुस्कुराते हुए देखोगे तो मुस्कुराते ही चले जाएंगे। कुछ हादसे इंसान की बेहतरीन के लिए होते हैं, लेकिन इंसान को वक्त समझ में नहीं आते। कुछ वक्त गुजारने के बाद इंसान को समझ आती है कि जो भी हुआ मेरे हक में बेहतर था। जो जितनी तवज्जो के काबिल हो उसको उतनी ही अहमियत दो। कमजोर लोगों का हद से ज्यादा ख्याल रखोगे तो अपनी अहमियत खो दोगे। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते आदमी अपनों से बहुत दूर निकल जाता है। उन लोगों का रिश्ता बहुत खास होता है जिनके जज्बात अल्फाज के मोहताज न हो। मतलब बहुत वजनी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवजन हो जाते हैं। अपनी बेइज्जती का जवाब उस अंदाज से इज्जत और एहतराम मोहब्बत से दे के बेइज्जती करने वाला शख्स इंतहाई शर्मिंदा हो। जिंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी न होने वाली ख्वाहिशों से ज्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह पाक ने अता की है। दूसरों की मदद के लिए जरूरी नहीं कि आप ताकतवर या अमीर हो, बल्कि आपका रहम दिल होना जरूरी है। किसी से बदला लेकर क्या ही फायदा। याद रखें, जो पत्ते खराब होते हैं वो अक्सर पेड़ों से खुद ही गिर जाया करते हैं। सालों के दुख लम्हों में खत्म नहीं होते। वाज दफा माफी मांगने वाला तो माफी मांगकर अपनी तकलीफ कम करने की कोशिश करता है या अपना अगला रास्ता आसान करता है, मगर दूसरी तरफ माफी देने वाला कभी कभी ऐसे मकाम पर होता है कि वो मुजरिम को तो माफ कर देता है मगर उस तकलीफ को नहीं भूल पाता जो सजा उसने बरसों काटी हुई होती है। इतना सब्र और इतना जर्फ कहाँ से लाया जाए। जब सब्र तुम्हारे दिल की दुआ बन जाए तो अल्लाह पाक की रहमत तुम्हारी हर परेशानी का हल बन जाती है। इंसान जीतता या हारता नहीं है, इंसान सिर्फ एक सबक सीख लेता है। इंसान बड़ी दिलचस्प मखलूक है, ये जानवरों को तकलीफ में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन इंसान को मुसीबत में मुब्तला करके खुश होता है। जिंदगी इतनी अच्छाई और सच्चाई के साथ जिए कि जब कोई कहे कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिले तो वो अल्फाज आपको दुआ लगे, बद्दुआ नहीं। कोशिश करें कि बिना मतलब के अच्छे बने, मतलब के लिए तो हर कोई अच्छा ही बनता है। सामने वाले की तरफ से अगर बहुत देर कोई राब्ता ना हो तो दस्तक देकर पूछ लीजिए क्या वो जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो यकीनन आप वहां मर चुके हैं। हो सकता है कि सारी दुनिया तुम्हें दुख दे और एक शख्स तुम्हें खुश कर दे। ये वही शख्स है जो एक रोज तुम्हें दुख देगा
और सारी दुनिया तुम्हें खुश नहीं कर सकेगी। किसी का साथ देना चाहते हैं तो खुल के दे, वरना साफ इनकार कर दे। दरमियानी रास्ता मुनाफिकत का है और मुनाफिक इंसान किसी रिश्ते के काबिल नहीं होता। जिंदगी में कोई मुलाकात फिजूल नहीं होती। हर वो इंसान जिसे आप मिलते हैं वो या तो आपकी आजमाइश होता है, या सजा होता है, या फिर आसमानी तोहफा होता है। जज्बात को किस्तों में तकसीम करें, क्योंकि जब आप कसरत से निछावर करते हैं तो लोग उकता जाते हैं और फिर इंसान मुसलसल दर्द सहते सहते हंसना ही नहीं बल्कि रोना भी छोड़ देता है। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, वो वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता। कभी जो जिंदगी में थक जाओ तो किसी को कानों कान खबर न होने देना। लोग टूटी हुई इमारत की ईंट तक उठा कर ले जाते हैं। किसी गलत शख्स के साथ रहने से बेहतर है कि अकेले रहा जाए। कभी कभी जो लोग अकेले उड़ते हैं उनके परों में सबसे ज्यादा ताकत होती है। मदद करना सीखो, बगैर किसी फायदे के मिलना जुलना सीखो, बगैर किसी मतलब के आजी से चलना सीखो, बगैर किसी और के जिंदगी जीना सीखो, बगैर किसी दिखावे के। सबसे बड़ा मुनाफिक और काबिले नफरत वो इंसान होता है जो आपसे फायदा भी उठाए और मतलब पूरा होने के बाद आपकी मुखालिफत भी करें।